ملک بھر کے 21 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری۔ قومی اسمبلی کی 5، پنجاب اسمبلی کی 12، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی کی 2 نشستوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سوشل میڈیا پر ریٹرننگ آفیسر NA8 باجوڑ سے منسوب 19 اپریل کا خط جعلی اور بطور پروپیگنڈا استعمال کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ ریٹرننگ آفیسر نے 19 اپریل ہی کو اس خط کی وضاحت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر باجوڑ کو تحریری طور پر بتا دیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں NA8 اور PK22 پر پولنگ پرامن طریقے سے جاری ہے۔ اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ معیشت کی بحالی سے متعلق ہماری سمت بالکل واضح ہے۔ عالمی اداروں کے نمائندوں سے مثبت بات چیت ہوئی۔ آنے والے دنوں میں IMF اور ورلڈ بینک سے متعلق اچھی خبریں آئیں گی۔ پاکستان کے بارے میں رویوں میں تبدیلی آئی۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور پاکستانی سفیر مسعود خان کی پریس بریفنگ۔ زراعت کے شعبے کو ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت پالیسی ماحول میں بہتری۔ زراعت کے شعبے نے تیسری سہ ماہی کے دوران گزشتہ سال کے مقابلے میں 5.02% نمو ظاہر کی۔ فوج کے جوان ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے تیار۔ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی سازشیں کرنے والے دشمنوں کو پاک فوج کے دلے سپاہی سبوتاژ کریں گے۔ فساد سے بھرا ہوا اٹھو کہ تم مجاہدو خدا کی جان سار ہو اٹھو کہ تم فصیل پہ۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارشوں سے نقصانات۔ مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 98 ہو گئی، 89 زخمی، 536 گھر مکمل تباہ، 2500 سے زائد کو جزوی نقصان پہنچا۔ NDMA کی رپورٹ۔ پاک فوج RFC کا چمن میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ چمن شاہراہ NA25 مشترکہ کاوشوں سے بحال۔ سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات، مفت ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی۔ ضلع گوادر میں پاک فوج اور پاک بحریہ کی امدادی ٹیمیں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں مصروف۔ پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے مرادی، ڈنڈو، کلانچ اور دیگر علاقوں میں محصور افراد تک امدادی سامان کی ترسیل۔ اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیاں جاری۔ تلکرم کے پناہ گزین کیمپ میں تازہ کارروائی، مزید 14 فلسطینی شہید۔ نور شمس پناہ گزین کیمپ میں گھروں کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے۔ رفح میں بھی اسرائیلی فوج کا حملہ، 6 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 10 افراد شہید۔ خان یونس کے ناصر میڈیکل کمپلیکس کے سامنے اجتماعی قبر سے 50 لاشیں برآمد۔ فلسطینی ہنگامی سروس کا انکشاف۔ رفح پر اسرائیل کے فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی روکنے کی ضرورت ہے۔ فلسطینی ریاست کا قیام سفارتکاری کے ذریعے ہونا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن۔ شاعر مشرق، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی 86ویں برسی۔ مفکر پاکستان نے اپنی انمول شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونکی۔ علامہ اقبال کا کلام ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے چراغ راہ ہے۔ راولپنڈی میں دوسرا T20 اقبال وانو کو ہم سے بچھڑے 15 برس بیت گئے۔ مدھر آواز آج بھی موسیقی کے شائقین کو اپنے سحر میں لیے ہوئے ہے۔ اقبال بانو نے 1950 میں فنی کریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا۔
रावलपिंडी में दूसरा T20 न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। ग्रीन शर्ट्स ने 91 रन का हदफ 12.1 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल किया। शाहीन आफरीदी की 3 विकेटें, मोहम्मद रिजवान के नॉट आउट 45 रन। तीसरा मैच आज रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। आलमी नंबर 1 पोलैंड की इगा श्वेटिक का लगातार तीसरी मर्तबा स्टटगार्ट ओपन जीतने के लिए सफर थमा। सेमीफाइनल में काजाकिस्तान की एलिना रिबकिना ने शिकस्त देकर हैट्रिक का खाक तोड़ा। यूक्रेन की मार्टा कोस्टेव ने जमहूरिया चेक की मार्केटा वेंड्रोसोवा को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। स्पेन में बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट का फाइनल लाइनअप मुकम्मल। यूनान के स्टेफानोस टेसिपास और नॉर्वे के कैस्पर रूट ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में स्टेसिपास ने सेर्बिया के डोसान लोजोविच, जबकि रूट ने अर्जेंटीना के टॉमस एचोरी को शिकस्त दी। और क्रोशिया में वर्ल्ड मोटर रैली चैंपियनशिप, बेल्जियम के थेरी नोएल को बर्तानिया के अल्फन एवंस पर सबकत हासिल हो गई। दोनों रेसर्स के दरमियान गुज़श्ता रोज का डेडलॉक 4.9 सेकंड्स के फर्क से खत्म हुआ। नोएल के टीम मेट फ्रांस के सेबास्टियन ओगियर तीसरे नंबर पर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर के 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, जिसमें कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली की 2 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ हलकों की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है मुख्तलिफ शहर में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ से कौमी असम्बली के हलका NA 119 पर वोटिंग का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फारूक समेत 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नाज़रीन, इंतखाबात का अमल जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली के 5 और 16 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। कौमी असम्बली के लिए NA 8 बाजोड़, NA 44 DI खान, NA 119 लाहौर, NA 132 कसूर, NA 196 कंबर शहदाद कोट। सूबाई असम्बली के लिए पंजाब से 12 सूबाई हलकों के ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें पंजाब असम्बली के लिए PB 22 चकवाल, PB 32 गुजरात, PB 36 वजीराबाद, PB 54 नारोवाल, PB 93 बखर 5, PB 139 शेखुपुरा 4, PB 147 लाहौर 3, PB 149 लाहौर 5, PB 158 लाहौर 14, PB 164 लाहौर 20, PB 290 DG खान 5 और PB 266 रहीम यार खान में 12 शामिल हैं। मुल्क भर के 21 हलकों में आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। मुल्क भर में सिक्योरिटी के खातिरखा इंतजाम किए गए हैं इस मौके पर। और अगर बात की जाए कौमी असम्बली की, तो कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 5 हलके ऐसे हैं जहां पर पोलिंग का अमल जारी है। पंजाब असम्बली की अगर बात करें तो पंजाब असम्बली के 12 हलकों के अंदर जो पोलिंग का अमल है जारी है। रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ से हमारे नुमाइंदे ताहिर जाफरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर, बताइएगा आप किस हलके में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं पोलिंग की? 19 में मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह से ही पोलिंग का अमल जो है जारी है, बहुत हार्मोनिक माहौल में जारी है। लेकिन UC 134 में कुछ तसादुम की जो है शिकायत मिली, उसके बाद पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसको कंट्रोल कर लिया। उसकी वजह भी पोलिंग कैंप लगाना जो है उसकी बनी, लेकिन कोई उसके अलावा पोलिंग स्टेशन के अंदर अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या NA 119 में अभी तक नहीं आया। बहुत हार्मोनिक माहौल में यहाँ पर वोटिंग का अमल जारी है। सुबह से ही 119 के जितने भी हमने पोलिंग स्टेशन PTV न्यूज़ की टीम ने कवर किए हैं, उसमें कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ और बहुत पुरअमन माहौल में वोटर
वोटर्स आ रहे हैं, अपना वोट हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। एन 119 में जो है मरीम नवाज़ ने जो नशिस्त वज़ीर आला ने खाली की थी, उसके बाद जो है इसका अमल है। इसके बाद अली परवेज़ मलिक साहब कंटेस्ट कर रहे हैं PMLN की जानिब से, शहजाद फ़ारूक जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह TLP के उम्मीदवार हैं और तकरीबन 9 उम्मीदवार जो है वो इस नशिस्त के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वोटिंग का ट्रेंड देख रहे हैं। सर आप ये बताइए कि आपने वोट कास्ट कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वोट कास्ट कर लिया जी। मैंने जो वोट कास्ट किया है जो वो मैंने मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए वोट कास्ट किया है। तो माशाल्लाह अली परवेज़ साहब वो ख़ानदान हैं जिनके वालिद साहब पहले मलक परवेज़ साहब ने और चौधरी शहबाज साहब ने, उनका अच्छा पेड़ था वो माशाल्लाह उन्होंने अच्छा हमारे इस इलाके के अंदर मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आज PTI की हमायत कर रहे हैं कि यार ये जो हलका है NA 119 ये माशाल्लाह तकरीबन 10 साल से 15 साल से 20 साल से 3 साल से इधर जो भी एक ईंट भी लगी है, कोई वाटर सप्लाई का काम हुआ है, कोई ट्यूबवेल का काम हुआ है, कोई सड़कों का काम हुआ है, कोई भी काम हुआ है वो माशाल्लाह वो मुस्लिम लीग नून ने किया है। आप सर मुतफिक है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यहाँ पर PMLN की तरफ से और आइंदा अब इसमें आपने किसको वोट कास्ट किया? जी इंशाल्लाह ये PMLN उनकी तरफ से जितने भी डेवलपमेंट काम हो रहे हैं उनकी ही तरफ से हो रहे हैं। पिछले 5 साल में जो भी काम हुए हैं इनकी हुकूमत रही है इमरान खान की, इसमें से कोई काम किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। जितने भी आगे आने वाले काम हैं, वाटर सप्लाई है, गैस का मामला है, सेवरेज का मामला है और मामलात हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही हल हो रहे हैं। बाकी आवाम बहुत सारा मुश्किलात का। सर आपने किसको वोट कास्ट किया? हमने शेर को वोट। हाँ वोटर्स से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि ये तरक्की का सफ़र जो है जारी रखेंगे और उन्होंने तरक्की को ही वोट दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जाफ़ी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और लाहौर से पंजाब असम्बली के हलकों के अंदर भी इस वक्त पोलिंग का अमल जो है जारी है। और पंजाब असम्बली के अगर हलकों की हम बात करें तो पंजाब असम्बली के मुख्तलिफ हलके ऐसे हैं जहाँ से हम अपने नुमाइंदगान के साथ रब्ता करेंगे और आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। पंजाब असम्बली के मजमूई तौर पर 12 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर ज़मीनी इंतखाब हो रहे हैं। और पंजाब असम्बली के लिए PB 22 चकवाल, PB 32 गुजरात, PB 36 वजीराबाद, PB 54 नारोवाल, PB 93 बखर 5, PB 139 शेखुपुरा 4, PB 147 लाहौर 3, PB 149 लाहौर 5, PB 158 लाहौर और PB 164 लाहौर 20, PB 290 DG खान 5 और PB 266 रहीम या खान 12 शामिल हैं। इसी हवाले से मज़ीद हम अपने नुमाइंदगान से जानेंगे इस वक्त जो हलकों की जहां पोलिंग का अमल जारी है वहां की सूरत हाल कैसी है और कितनी तादाद में लोग जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज इतवार का दिन भी है। तो हम अपने नुमाइंदगान से गाहे बगाहे अपडेट लेते रहेंगे। मुल्क भर में ज़मीनी इंतखाब के हवाले से दंगल सज चुका है और मुख्तलिफ हलकों में, चाहे वो कौमी असम्बली के हलके हों, पंजाब असम्बली के हलके हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों या बलूचिस्तान असम्बली के हलके हों, उन तमाम हलकों के अंदर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे जो है उसका आगाज़ हुआ है और बगैर किसी वक्फे के ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और वोटर्स अपना हक़ राय दही जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें बहुत सी सीटें अगर उरूज हम बात करें तो वो हैं जो कि कंटेस्टेंट की जानिब से सीटें जो हैं वो जीतने के बाद जो है उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद दोबारा वहाँ पर जो है वो अब ज़मीनी इंतखाब हो रहे हैं। सही अयाज, इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे लाहौर में मौजूद हैं, हल्का 147 में नवीद हयात। जी नवीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर से कौमी असम्बली की एक जबकि सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर जो है पोलिंग का अमल सुबह से जारी है। और अगर बात की जाए तो मैं इस वक्त PP 147 में मौजूद हूँ जहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर इस हलके में उम्मीदवारों की बात की जाए तो टोटल 11 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो उम्मीदवार हैं वो मलक रियाज हैं, सुन्नी तहरीक से जो उम्मीदवार हैं वो शाहरुख जमाल हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मोहम्मद हान मदनी जो हैं वो इस मैदान में उतरे हैं। अगर इस हलके में वोटर्स की बात की जाए तो 3,74,000 से ज़ायद वोटर्स हैं, उनमें 1,74,000 जो हैं वो ख़वातीन वोटर हैं, जबकि 2,01,000 मर्द वोटर जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इस हलके में अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 232 पोलिंग स्टेशन जो हैं इस पूरे जो हलका है उसमें कायम किए गए हैं, जिनमें ख़वातीन के 91 हैं, मर्दों के 94 हैं और मुश्तरका तौर पर जो हैं 46 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इस हलके में कायम किए गए हैं। अब से कुछ देर कबल जो है जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो और MNA थे
MNA نے جو ہے ووٹ اپنا کاسٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ شہریوں کی ایک بڑی جو تعداد ہے وہ صبح سویرے تو اتنا رش دیکھنے کو نہیں ہے، لیکن جب سے 12 بجے ہیں اس کے بعد شہریوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے امڑ آئی ہے، اور اب جو ہے رش بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ صحیح، شکریہ نوید حیات، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ تمام حلقوں سے جو ہے وہ گاہے بگاہے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور ملک بھر کے 21 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ قومی اسمبلی کی 5، پنجاب اسمبلی کی 12، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی کی 2 نشستوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اور رخ کرتے ہیں لاہور کے حلقہ PP 158 کا، جہاں پر ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور محمد سفیان ہمارے نمائندے اس وقت وہاں پر موجود ہیں، تفصیلات ان سے لے لیتے ہیں۔ سفیان، اپڈیٹ کیجیے گا اس حلقے کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی بالکل، میں اس وقت لاہور کے حلقہ PP 158 میں موجود ہوں۔ یہاں پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا سلسلہ جاری ہے، ووٹرز کی آمد جاری ہے پولنگ سٹیشنز کی جانب۔ اگر کل ووٹرز کی تعداد کی بات کی جائے تو 1,86,000 کے قریب یہاں پہ کل ووٹرز کی تعداد ہے، جن میں سے 1,02,000 مرد ووٹرز، جبکہ 82,000 کے قریب یہاں پر خواتین رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے۔ کل 22 امیدوار مد مقابل ہیں۔ سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں پولنگ سٹیشنز کے انٹرس پر بھی پولیس کی نفری موجود ہے، جو اوریجنل اصلی شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد انٹر ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سخت انتظامات ہیں سیکیورٹی کی جانب سے بھی، الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی۔ یہاں پر تقریباً 100 سے زائد پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر بلا تعطل شام 5 بجے پولنگ جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے سفیان، آپ سے اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ اور لاہور کے حلقہ PP 164 میں بھی پولنگ کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی وسیم، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں لاہور کے حلقہ 164 میں موجود ہوں، جہاں ضمنی انتخاب کا عمل جاری ہے۔ صبح 8 بجے سے پولنگ کا آغاز ہوا، جو بنا تعطل ابھی تک جاری ہے، شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اس حلقے کی اگر ٹوٹل ووٹرز کی بات کریں تو تقریباً 1,43,000 ووٹر کل جو ہیں یہاں موجود ہیں۔ 80,000 کے قریب مرد، جبکہ 63,000 کے قریب خواتین ووٹرز ہیں۔ یہاں صبح سے 8 بجے سے لے کر اب تک ووٹرز کی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے راشد منہاس جو ہیں وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی اگر بات کریں تو یہاں لاہور میں تقریباً 20,000 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، اور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی ناگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ جی شکریہ وسیم سجاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب رخ کریں گے شیخوپورہ کا، جہاں موجود ہے ہمارے نمائندے اسلام غازی، ان سے بات کرتے ہیں۔ اسلام، اپڈیٹ کیجیے گا اس وقت شیخوپورہ کی اگر ہم بات کریں صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 139 کی، تو وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل فیروز والا، ضلع شیخوپورہ کا علاقہ ہے خانپور، PP 139 کا علاقہ ہے۔ پولنگ سٹیشن نمبر ہے 65، جہاں پر جو ووٹ ڈالنے کا عمل ہے وہ صبح 8 بجے سے شروع ہو چکا ہے۔ ووٹرز آہستہ آہستہ پولنگ سٹیشن کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی صبح کا وقت ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا ووٹرز کی بڑی تعداد یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ پولنگ سٹیشن کا رخ کرے گی اور اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کے امیدوار کو سپورٹ کرے گی اور اپنا حق رائے دہی استعمال کرے گی۔ جہاں تک PP 139 کا تعلق ہے تو یہااں پر جو مجموعی ووٹرز کی تعداد ہے وہ 1,89,205 ہے، جن میں مرد ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ 1,03,424۔ اسی طرح اگر خواتین ووٹر کا میں ذکر کروں تو وہ 85,781 ووٹ ہیں۔ جہاں پر جو پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں مجموعی طور پر 123 پولنگ سٹیشن ہیں، جن میں مردوں کے لیے 33 پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں، خواتین کے لیے علیحدہ طور پر جو 31 پولنگ سٹیشن ہے، جبکہ جو مشترکہ پولنگ سٹیشن ہیں جہاں خواتین اور مرد ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں ان کی تعداد 59 ہے۔ مجموعی طور پر 6 امیدوار میدان میں ہیں، تاہم جو اصل مقابلہ ہے وہ PMLN کے رانا افضال حسین ہیں، جو کہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کے بڑے بھائی ہیں، 2 مرتبہ سابق MNA رہ چکے ہیں۔ ان کے درمیان اور سنی اتحاد کونسل اور دیگر جو جماعتوں کے متفقہ امیدوار ہیں اجاز حسین بٹی، ان کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو TLP کے امیدوار ہیں ان کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جو فروری 2024 میں الیکشن ہوئے تھے وہاں TLP کے امیدوار رفاقت علی نے 16,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو مجموعی طور پر 6 امیدوار ہیں، 3 آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سیکیورٹی کی صورتحال کا میں ذکر کروں تو ضلع بھر میں آج دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔
1470 से ज़्यादा पुलिस जवान हैं जो कि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस्लाम गाजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी रुख करते हैं कोहाट का, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। जनरल इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार असमतुल्लाह खटक की वफ़ात के बाद इंतखाबात मुलतवी किए गए थे। इस हल्के में 10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हमारे नुमाइंदे असद नौशाद इस वक्त मौजूद है PK 91 कोहाट 2 के पोलिंग स्टेशन में। मजीद उनसे जानते हैं। जी असद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोहाट PK 91 कोहाट 2 में भी इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात का अमल जारी है, जो बस सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ है और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि जनरल इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार असमतुल्लाह खटक की वफात के बाद यहाँ पे इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। आज सुबह से इंतखाबात का जो अमल है वो जारी है और जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फा के जारी रहेगा। अगर वोटर्स की बात की जाए तो PK 91 कोहाट 2 में टोटल वोटर हैं 2,24,237 टोटल वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,21,570 है, जबकि खवातीन 1,28,207 है। इनके लिए टोटल 168 पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हायर गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कोट के पोलिंग स्टेशन नंबर 68 में, और यहाँ पोलिंग अमल जारी है जो कि बगैर वक्फा के जारी रहेगा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं और 1500 से ज़्यादा एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए हैं। अगर बात की जाए कैंडिडेट्स की, उम्मीदवारों की तादाद 10 उम्मीदवार इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। असद नौशाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोहाट। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में NA 8 और PK 22 पर पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मोहम्मद सलीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम, अपडेट कीजिएगा, इस हल्के की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िले बाजोड़ के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खार में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर लोग यहाँ पर अपना वोट पोल कर रहे हैं। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये ज़िले बाजोड़ में NA 8 और PK 22 पर आज इलेक्शन हो रहे हैं। NA 8 पर और PK 22 पर कुल वोटर्स की तादाद 6,72,591 है, जहां पर मर्दों की तादाद 3,68,531 है। इसी तरह औरतों की तादाद 3,04,460 है, जहां पर यहाँ पोलिंग के लिए 366 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें हसास पोलिंग स्टेशनों की तादाद 151 और इसी तरह इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन 88 है। यहाँ पर NA 8 पर 13 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल है। ठीक है, और रुख करते हैं अभी बलूचिस्तान का, जहां सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे कोयटा से इसरार अहमद से। जी इसरार। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। इसी तरह PB 20 खुददार 3 की बात करें तो यहाँ से कुल उम्मीदवार 8 है। इसी तरह 93,425 वोटर्स अपनी हक की राय इस्तेमाल करेंगे, जबकि पोलिंग स्टेशन यहाँ पर 100 बनाए गए हैं। इस नशिस्त पर सरदार अख्तर मेंगल कामयाब हुए थे, ताहम सरदार अख्तर मेंगल ने अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त रखने के बाद सूबाई असम्बली छोड़ दी थी, जिसके बाद इस पर पोलिंग का अमल आज जारी है। इसी तरह PB 22 लसबेला की बात करें तो यहाँ से कुल उम्मीदवार 4 है और वोटर्स की तादाद 39,068 है, जबकि पोलिंग स्टेशन यहाँ पर 129 बनाए गए हैं। इस नशिस्त पर भी जाम कमाल कामयाब हुए थे, ताहम जाम कमाल ने अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त रखने के बाद सूबाई असम्बली नशिस्त खाली ली थी। PB 50 किला अब्दुल्ला की बात करें तो यहाँ पर भी वोटिंग का सिलसिला जारी है। 4 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और वोटर्स की तादाद 1,63,753 है, जबकि पोलिंग स्टेशन यहाँ पर 125 बनाए गए हैं। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू है, जो बिना किसी वक्फे के 4 बजे तक जारी रहेगी। जी शुक्रिया इसरार अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर रिटर्निंग ऑफिसर NA 8 बाजोड़ से मंसूब 19 अप्रैल का खत जाली और बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर ने 19 अप्रैल को ही इस खत की वजाहत करते हुए डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और को तहरीरी तौर पर यह बता दिया था कि यह जाली खत है, जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर का वजाहती खत मीडिया से भी शेयर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन वाज़ेह करता है कि NA 8 बाजोड़ में इंतखाबात की तैयारी का अमल खुशउस्लूबी से मुकम्मल किया गया है, जिसकी तस्दीक रिटर्निंग अफसर ने
نے بھی کی ہے۔ آج اس انتخابی حلقے سمیت تمام متعلقہ انتخابی حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ ہو رہی ہے، جس میں عوام بلا خوف و خطر اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ اور رخ کرتے ہیں ڈی جی خان کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 290 کا، جہاں ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ ہمارے نمائندے آصف رزاق حلقے میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آصف، کیسی گہما گہمی ہے ضمنی انتخابات کی؟ جی، اس وقت میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 290 کوٹ چھوٹا کے پولنگ سٹیشن بستی مولانا پر موجود ہوں، جہاں پر پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہو چکا ہے اور بلا تعطل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ ووٹر کی سہولت کے لیے 200 میٹر کے فاصلے پر پولنگ ایجنٹ کے کیمپ بنا دیے گئے ہیں، جہاں پر سے ووٹر اپنی پرچیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اس حلقہ میں کل رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 1,93,960 ہے، جس میں مرد ووٹر کی تعداد 1,05,454 اور خواتین ووٹر کی تعداد 88,506 ہے۔ ووٹرز کی سہولت کے لیے 117 پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں، جن میں 12 کو انتہائی حساس اور 34 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ اس حلقہ میں ٹوٹل 7 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار علی احمد لغاری، پاکستان پیپلز پارٹی کے منیر احمد جلبانی بلوچ، سنی اتحاد کونسل کے سردار محی الدین کھوسا کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں مزید میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سیٹ سردار اویس احمد خان لغاری کی طرف سے چھوڑی جانے کے بعد اس حلقہ میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ شکریہ آصف رزاق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی سے متعلق ہماری سمت بالکل واضح ہے، اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ پاکستانی سفیر مسعود خان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں IMF اور ورلڈ بینک سے متعلق اچھی خبریں آئیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان کے ہمراہ واشنگٹن میں پریس بریفنگ میں بتایا کہ مشکلات اور چیلنجز کے باوجود ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ بات چیت مثبت رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی مارکیٹوں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں، سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ وفاقی وزیر نے اخراجات کو کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا کہ گزشتہ سال کی نسبت پاکستان کے بارے میں رویوں میں تبدیلی آئی ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک سے متعلق اچھی خبریں ملیں گی۔ وزیر خزانہ نے دورے کے دوران اہم ملاقاتیں کی ہیں، جس میں سرمایہ کاروں نے عندیہ دیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ مسعود خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی امریکی سرمایہ کاروں کو ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے S&P گلوبل اور فچ ریٹنگ کے نمائندوں نے واشنگٹن میں ملاقات کی ہے۔ IMF کے ساتھ دستخط شدہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پشت پر ملک کے مثبت اشاریوں پر ایک اپڈیٹ شیئر کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے مختصر، درمیانی اور طویل مدتی افق پر ٹیکس، توانائی اور نجکاری کے ترجیحی شعبوں میں جاری اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر IMF، صدر ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت دیگر کثیر الجہتی اداروں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے اس بات کی توثیق کی کہ موسمیاتی تبدیلی، ڈیجیٹلائزیشن اور انسانی ترقی کا عالمی بینک کا ایجنڈا حکومت کی ترجیحات سے ہم آہنگ ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کی ممکنہ سرمایہ کاری کا بھی ذکر کیا۔ زراعت کے شعبے کو ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اور یہ کسان برادری کے لیے امید افزا ماحول کی عکاسی کرتی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت پالیسی ماحول میں بھی بہتری آئی ہے۔ زراعت کے شعبے نے تیسری سہ ماہی کے دوران گزشتہ سال کے مقابلے میں 5.02% نمو ظاہر کیا ہے۔ ان مثبت اشاریوں سے ملک میں دوسرے زرعی انقلاب کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے ساتھ ساتھ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی توقع ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد پیداوار کو بڑھانا اور بہتر بنانے کے لیے جدید زرعی ٹیکنالوجی پر مبنی کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ تکنیک متعارف کروانا ہے۔ زراعت کے شعبے میں ترقی سے قومی غذائی تحفظ، برآمدات اور مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مزید مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ پاک فوج کے جوان ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی سازشیں کرنے والے دشمنوں کو پاک فوج کے دلیر سپاہی سبوتاژ کر دیں گے۔ اے غازیوں، اے مجاہدوں، اٹھو کہ شر کھڑا ہوا، مشرکوں خوارجوں کا پھر سے سر بڑا ہوا، نغمہ جاری کر دیا گیا ہے۔ شر کھڑا ہوا، مشرکوں خوارجوں کا پھر سے سر بڑا ہوا۔ اے غازیوں مجاہدوں اٹھو کہ شر کھڑا ہوا،
मुशरिकों खुआर जो का फिर से सर बड़ा हुआ, उठो के दीन हक पे फिर झूठ है चढ़ा हुआ, हर एक गली मकान फिर फसाद से भरा हुआ, उठो कि तुम मुजाहिदो खुदा की जानिसार हो, उठो कि तुम फसील पे तैयार हो शियार हो, गरजती ललकार हो, गरजती ललकार हो उम्मते रसूल का, वकार हो, वकार हो, वकार हो, वकार हो। उठो के जुल्फ़िकार की। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने चीन के शोगांग काउंटी में मुनक्किदा 25वीं चाइना इंटरनेशनल वेजिटेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने आलमी ज़र अखराजात और ताउन के फ़रोग़ में एक्सपो के किरदार को उजागर किया और सब्जियों की पैदावार के शोबे में चीन की शोगांग काउंटी की क़यादत की तारीफ़ की। खलील हाशमी ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान ज़राई शोबे में देरीन शराकतदारी को उजागर किया और इसे दो तरफ़ा ताल्लुकात की बुनियाद करार दिया। नाज़रीन, अब बात करें मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की, तो इसराइली फ़ौज ने गज़ा के बाद मकबूजा मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों के खिलाफ ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली जारहियत में 37 फ़लस्तीनी शहीद और 68 ज़ख्मी हो गए हैं। गुज़श्ता 6 माह के दौरान शुहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 34,049 हो गई है और हमलों में अब तक 76,901 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। काबिज़ फ़ौज ने तलकरम के पनाह गुज़ीन कैंप में ताज़ा कार्रवाई करते हुए मज़ीद 14 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप में छापामार कार्रवाइयों के दौरान फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। बिल्डोज़रों से मकानात को मिसमार किया जा रहा है। मकामी लोगों का ये कहना है कि इसराइली फोर्सेज ने इलाके में बिजली, पानी और खुराक की रसाई मुश्किल बना दी है। इलाके के मुहासे की वजह से खाने पीने की अशिया की किल्लत भी पैदा हो गई है। किसी भी शख्स को पनाह गुज़ीन कैंप में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। गज़ा के जनूबी शहर रफ़ा में इसराइली फ़ौज के हमले में 6 बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हो गए हैं। अन्नजार अस्पताल के मुताबिक 2 ख़वातीन और एक मर्द के साथ 1 से 7 साल की उम्र के 5 बच्चे और एक 16 साल लड़की शुहदा में शामिल है। फ़लस्तीनी एमरजेंसी सर्विसेज ने गज़ा के शहर खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 50 लाशों के एक इज्तमाई कब्र का इंकशाफ किया है। हंगामी सर्वे के मुताबिक कॉम्प्लेक्स से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद इज्तमाई कब्रों की तलाश और बाजियाबी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। कई महीनों की मुसलसल इसराइली बमबारी और शदीद लड़ाई के बाद अब शहर का बेशतर हिस्सा तबाह हो चुका है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि अमरीका रफ़ा में इसराइल के फ़ौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकता। इटली में G7 इजलास के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया फ़लस्तीनी रियासत तक पहुँचने के लिए पुरज़्म है, लेकिन ये काम सिफारतकारी के ज़रिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खित्ते में जारी कशीदगी को रोकने और सूरत हाल को पुरअमन करने के लिए कोशिशें करना होंगी। इस हवाले से इसराइल के साथ आला सतह पर बातचीत जारी है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत की करारदाद को वीटो करने के अमरीकी इक़दाम पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अमरीकी फैसले से साबित होता है कि वो दो रियासती हल और खत्ते में अमन के हुसूल के हवाले से अपने वादों से पीछे हट गया है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी वफा को एक इंटरव्यू में सदर महमूद अब्बास ने कहा कि अमरीका ने फ़लस्तीन के हुकूक, तारीख़ और ज़मीन के साथ फ़लस्तीनी अवाम के मुक़द्दसात की खिलाफ वर्जी का मुज़ाहरा किया है। अमरीका ने सलामती कौंसिल में एक वसी हिमायत याफ्ता करारदाद को वीटो कर दिया था। उन्होंने कहा कि दुनिया बैनुल-अक़वामी कानून के इत्तलाक़ पर मुत्तफ़िक़ है और फ़लस्तीनियों के हक़ के साथ खड़ी है। अमरीकी इक़दाम ने इसराइल को नस्ल कुशी की जंग जारी रखने और कब्ज़े की हिमायत जारी रखी है। रूस ने यूक्रेन के 50 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। रूसी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि गुज़श्ता रात की हुकूमत ने रूसी फेडरेशन की सरजमीन पर अहदाफ के खिलाफ हमले किए। एक बयान में कहा गया है कि रूसी फ़ज़ाई दिफ़ाई मिसाइल सिस्टम ने बल्गोरोड, ब्रोंस्क, कर्स्क और तोला के इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन्स तबाह किए। उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने कहा है कि इत्तेहादियों ने मुख्तसर वक्त में यूक्रेन को फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फराहम करने का फैसला किया है। ब्रसल्स में न्यूज़ ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि नेटो यूक्रेन कौंसिल के वज़राए दफ़ा ने ऑनलाइन इजलास किया। शुरा ने कहा कि इत्तेहादियों के पास ऐसा साजो सामान और दिफ़ाई निज़ाम मौजूद है यूक्रेन को फराहम किया जा सकता है। उनमें पैट्रियट सिस्टम्स, हसास फौजी साजो सामान और ड्रोन्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों ने अपने वादों को जल्द हतमी शक्ल देने की अज़्म का इरादा किया है।
नाज़रीन, शुमाली कोरिया ने सुपर लार्ज वॉरहेड क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए एक नई किस्म के तैयार शिकन क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया है। शिमाली कोरिया की मरकजी खबरसार एजेंसी के मुताबिक जनरल मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने बुहैरा इज़र्द में तजुर्बात किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि मुल्क भर में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादिसात में 98 अफराद जाँ बहक और 89 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बारिशों के दौरान नदी नालों में तुग़यानी, मिट्टी के तोदे गिरने, आसमानी बिजली गिरने और छतें मुनहदिम होने से 536 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए और 2500 से ज़ायद को जुज़वी नुकसान पहुँचा। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक हालिया बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 46 हलाकतें हुई हैं। पंजाब में 26, बलूचिस्तान में 15 जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ हादिसात में 11 अफराद जाँ बहक हुए। हालिया बारिशों के बायस दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। ज़िला गवादर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फौरी इमदादी ऑपरेशन जारी है। अहले इलाका ने गुज़श्ता 3 रोज़ से सैलाबी सूरत हाल का शिकार ख़ानदानों के महसूर होने से मुतालिक इत्तला दी थी। फौरी इमदादी कार्रवाई करते हुए पाक बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुरादी, डंडो, कुलांच और दीगर इलाकों में महसूर अफराद तक इमदादी सामान तरसील किया गया है। गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी ऑपरेशन के दौरान पाक आर्मी और पाक बहरिया की इमदादी टीमें गवादर और ओमाड़ा के गिरदोनवा में भी मुसलसल रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन सर अंजाम दे रही हैं। मुतासिर इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ते होने के बायस हेलीकॉप्टर्स की मदद से मुतासरीन तक इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई जा रही है। अफ़वाज पाकिस्तान आजमाइश की इस घड़ी में अवाम के शाना बशाना खड़ी है और मुतासरीन तक इमदाद की फौरी तरसील को हर सूरत मुमकिन बना रही है। सैलाब मुतासरीन की फौरी इमदाद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। अफ़वाज पाकिस्तान सैलाब से मुतासिर अवाम की मुकम्मल बहाली तक इमदादी ऑपरेशन जारी रखने के लिए पुरज़्म है। पाक फौज और FC बलूचिस्तान का चमन में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हालिया बारिशों ने जहां मुल्क भर को मुतासिर किया है, वहीं चमन में सैलाबी सूरत हाल ने भी तबाही मचा दी। इस मुश्किल मौका पर पाक फौज और FC बलूचिस्तान ने इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया। सैलाबी सूरत हाल से चमन शारा NA-25 बुरी तरह मुतासिर हुई, जो पाक फौज और FC बलूचिस्तान की मुश्तरका काविशों से बहाल हो गई है। FC बलूचिस्तान और पाक फौज की जानिब से मुश्तरका रिलीफ ऑपरेशन पिछले 2 रोज़ से जारी है। चमन में मुतासरीन को PDMA की जानिब से खैमे, कंबल, बर्तन समेत दीगर अशिया ज़रूरिया भी तकसीम की गई हैं। सैलाब मुतासरीन को न सिर्फ बुनियादी सामान और राशन मुहैया किया गया बल्कि मुफ्त मेडिकल कैंप्स का भी इनेकाद किया गया है। चमन के मुतासरीन ने पाक फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से इलाका मकीनों को बर वक्त रेस्क्यू करने पर खूब सराहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। तहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और शहीद बेनज़ीराबाद 38, जबकि छोर और मिट्टी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। और अल्लामा इकबाल को अपनी कौम से बिछड़े 86 बरस बीत चुके हैं, मगर उनकी तालीमात आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ही वो अनमोल शख्सियत हैं जिन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान पेश करके बरसग़ीर के मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी को पहली दफ़ा बाकायदा शक्ल में पेश किया। इन्हें आलम इस्लाम के एक मारूफ शायर, फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर की हैसियत से भी पहचाना जाता है। इकबाल ने मुसलमानों को ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने के लिए नस्ली फ़िरक़ा वाराना तफरीक़ को बालाए ताक रख कर बाहम मुत्तहिद होने की तलक़ीन की। बहैसियत कौम हमें आज के दिन ये अहद करना चाहिए कि अल्लामा इकबाल की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए मुल्क पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करें।
शायर मशरक़ हकीम उल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 86वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुफक्किर पाकिस्तान ने अपनी अनमोल शायरी के ज़रिए बर्र सग़ीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रुख फूंक दी। फहद अजीज़ की रिपोर्ट। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आप 20वीं सदी के मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान और मुस्लिम सूफी होने के साथ साथ तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक हैं। अल्लामा इकबाल वकालत के साथ साथ शायरी भी करते रहे और सियासी तहरीकों में भी हिस्सा लिया। बरे सगीर में बरतानवी राज के दौरान आज़ादी की तहरीक सामने आई तो अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए नई नस्ल में इनकलाबी रूह फूंकी और अपने खुतबात में इस्लामी अजमत को उजागर किया। उनके उर्दू मजमूए कलाम में बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम समेत दीगर कलाम शामिल हैं, जबकि फारसी में इसरार खुदी, रमूज़े बेखुदी और प्यामे मशरिक समेत बेशुमार तसानीफ आज भी पढ़ी जाती हैं। अल्लामा इकबाल का सन 1930 का इलाहाबाद का मशहूर सदारती खुतबा तहरीक पाकिस्तान में तारीखी हैसियत रखता है। इस खुतबे में आपने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का तस्वर पेश किया। अपनी शायरी से उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। यही वजह है कि इनका कलाम हर माशरे और हर दौर में मकबूल और मारूफ रहा है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की बदौलत मुसलमानाने बरे सगीर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में 14 अगस्त 1947 को आज़ाद वतन हासिल कर लिया। मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक किसी एक अहद या ज़माने के शायर नहीं, बल्कि इनका हमागीर कलाम हर दौर और हर नस्ल की ज़हनी आबियारी का जरिया है। फहद अजीज़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। N132 कसूर में पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे से जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी अपना वोट अपने आबाई इलाके में कास्ट किया। हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन इस वक्त कसूर में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हल्का NA 132 कसूर में मौजूद हूँ और ये वो हल्का है जहाँ पर आम इंतखाबात 2024 में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कामयाब हुए थे। उन्होंने ये नशिस्त खाली की, उन्होंने लाहौर की नशिस्त अपने पास रखी। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने मलक रशीद अहमद खान को टिकट दिया है, जबकि उनके मद्दे मुकाबले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के गुलाम हुसैन डोगर हैं, जिनके दरमियान तगड़ा मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। ज़िमनी इंतखाब की बात की जाए तो रवायती तौर पर ज़िमनी इंतखाब में वोटर का टर्नआउट कम होता है और यही हमने आज देखा है कि यहाँ पर जितने भी पोलिंग स्टेशन पर आवाम का रश ज़रा कम है। उसके अलावा इस हल्के की अगर आपको बताऊँ तो इस हल्के में 5,32,587 वोटर हैं, जिनके लिए 1069 के करीब पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट किया। उनसे भी पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि इस ज़िमनी इंतखाब में क्या वोटर टर्नआउट ज्यादा होगा और क्या दीगर पार्टियां जो है वो वोटर को कायल कर सकेंगी कि वो घर से निकल के आए और इस ज़िमनी इंतखाब में आम इंतखाबात की तरह वोट कास्ट करें। तो उनसे भी पूछते हैं। टर्नआउट तो नेचुरली लो होगा। उसकी एक वजह है कि जनरल इलेक्शंस में आम इंतखाबात का माहौल होता है और उसमें एक सूरत हाल ऐसी होती है कि इलेक्शंस की ऑल अराउंड एक सज़ा होती है। हमने यहाँ पूरी एफर्ट की है कि यहाँ पे हमारे जितने वोटर्स हैं वो निकलें। आप गंदम की कटाई का भी मौसम है और वो आप जानते हैं कि गरीब आदमी का ब्रेड एंड बटर इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का यही कहना था कि इस हल्के में जितने भी ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं उसकी निस्बत यहाँ पर ज्यादा वोटर टर्नआउट होगा और यहाँ सबसे ज्यादा वोट कास्ट होगा। शुक्रिया मौज़मुद्दीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, क्लासिकी मौसीकी खुसूसन गज़ल गायकी में एक मुनफरद पहचान इकबाल बानो को हमसे बिछड़े 15 बरस बीत गए हैं। उनकी मधुर आवाज़ आज भी मौसीकी के शायकीन को अपने सहर में लिए हुए है। उनकी फ़नी खिदमत के हवाले से बता रही हैं लाहौर से शुमाइला शब्बीर। पाकिस्तान में गज़ल गायकी की दास्तान इकबाल बानो के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। 1935 में भारत के शहर दिल्ली में पैदा होने वाली इकबाल बानो को बचपन से ही मौसीकी से लगाव था, जिसे परवान चढ़ाने में उनके उस्ताद चांद खान ने अहम किरदार अदा किया। 1950 में फनी कैरियर का आगाज रेडियो से किया और खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज के बाइस मुख्तसर अरसे में गुलकारी में इम्तियाज मकाम हासिल किया। सुरीली आवाज से दिल को छू लेने वाली इकबाल बानो ने अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज और मिर्जा गालिब समेत नामवर शायरों का कलाम गाकर आलमगीर शोहरत हासिल की। दश्ते तन्हाई में है जान जहां लर्ज़ा
इकबाल बानो की बहुत सी गजलें ज़बान ज़द-ए-आम हुईं। आवाज़ की पुख्तगी के साथ सुर लय और ताल पर उन्हें कमाल गिरफ्त हासिल थी। इकबाल बानो ने बेशुमार फिल्मी नगमे भी गाए। उन्होंने उर्दू के साथ साथ फारसी का कलाम भी गाया। इकबाल बानो की खिदमत के एतराफ में उन्हें सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की एजाजात से भी नवाजा गया। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए दूसरे इदारों के साथ मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। बलूचिस्तान में तुर्बत, गवादर और कोयटा से कराची आने वाली मुसाफिर कोचेज, मिनी बसों, गाड़ियों के खुफिया खानों में गैर कानूनी ईरानी डीजल, पेट्रोल, मुनशियात और दीगर ममनुआ अशिया स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। इससे कबल भी मुसाफिर कोचेस के खुफिया खानों में मौजूद ईरानी डीजल और पेट्रोल की वजह से आतशदगी के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसमें कई कीमती जानों का ज़िया हुआ है। 2 दिन कबल ऑयल कंपनियों की गाड़ियों को कब्जे में लेकर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के लिए ओगरा और PSO से उनके मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। कब्जे में लिए गए ऑयल टैंकर्स में मशहूर कंपनियां शामिल हैं जो गाड़ियों को जाली परमिट जारी करते हैं। गुज़िश्ता रात ओथल और बेला के इलाके में एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 3 ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लेकर कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत में 5 रुपये कमी का ऐलान करके कीमत 15 रुपये मुकर्रर कर दी है, जिसके बाद ओकाड़ा में रोटी 15 रुपये और नान 20 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने कम वजन और मुकर्रर कीमत से ज्यादा पर रोटी फरोख्त करने की खिलाफ वर्जियों पर 1 लाख रुपए के जुर्माने किए हैं। मजीद तफसील मोहम्मद अशरफ से। पंजाब भर में 20 किलोग्राम आटे की कीमत में 500 रुपये कमी के बाद पंजाब की हुकूमत ने रोटी की कीमत में 5 रुपये कमी कर दी है। पंजाब हुकूमत की तरफ से 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है, जिसके बाद उकाड़ा में रोटी 20 रुपये की बजाय 15 रुपये और नान 20 रुपये में फरोख्त हो रहा है। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਨ में ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ 150 ਦੇ 5 ਨਾਨ, ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਨਾਨ। तो वज़ीर आला का जो ना शुक्रिया अदा करने हैं। पहले रोटी 20 रुपए का था, अब 15 रुपए का हो गया। हुकूमत को थोड़ा सा तो रिलीफ दिया है ना आवाम को। पहले मुझे 100 रुपए की 5 रोटियां मिलती थी, अब 75 रुपए की 5 रोटियां मिल रही हैं। मरीम नवाज का शुक्रिया जिसने गरीबों के लिए रोटी सस्ती की है। जिला भर में 100 ग्राम से कम वजन और ज़्यादा कीमत पर रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रोटी की 15 रुपये में फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 35 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मौजूद हैं, जिन्होंने 140 मुकामात पर तंदूरों और होटल्स पर जाकर रोटी और नान के वज़न और कीमतों को चेक किया। 25 खिलाफ वर्जियों पर 1 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 6 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, जबकि 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से रोटी की कीमत में कमी से आवाम और ख़ास तौर पर ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले तबके को रिलीफ मिल रहा है। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, ओकाड़ा। नाज़रीन, भावलपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर मौजूद जनूबी एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लाल सुहिंद्रा अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला मुख्तार। जनूबी एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लाल सुहानरा बहावलपुर सेहत के हवाले से अपनी एक मुनफरिद शनाख्त और एक खास पहचान भी रखता है, जिसे देखने और सैर करने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज के हमरा यहाँ का रुख करती है और मुख्तलिफ परिंदों और हिरनों को देखकर खुश होती है। लाल सुहानरा नेशनल पार्क काले हिरन के हवाले से भी मशहूर है। यहाँ कुदरती माहौल में रहने वाले हिरन देखने वालों को बहुत अच्छे लगते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ इनकी हिफाजत और खुराक का खास ख्याल रखता है। घने दरख्तों में घिरा ये पार्क गर्मियों में और भी मजा करता है। तफरीह की गर्ज से आने वाले अफराद जहाँ कश्ती रानी से लुत्फ उठाते हैं, इसके साथ साथ परिंदों को देखकर भी खुश होते हैं। यहाँ मौजूद हिरनों की अफजाइश नस्ल और हिफाजत के लिए 4 बड़े इंक्लोजर बनाए गए हैं। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गिलगित एक कदीम तालीमी इदारा है जो 1 सदी से हज़ारों तालिबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं गिलगित से शेर मोहम्मद। गिलगित शहर के वस्त में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गिलगित एक कदीम तालीमी अदारा है जो तकरीबन 1 सदी से
लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहा है। इस तारीखी अदारे का क़याम 1925 में अमल में लाया गया। अपनी क़याम से अब तक इस तालीमी अदारे से हज़ारों तालिबात फारिग हुई हैं, जो मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में नुमाया खिदमात सरअंजाम दे चुकी हैं और खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। बल्तिस्तान के अंदर 1925 के अंदर भी ऐसे अजहान मौजूद थे, ऐसे विजनरी लोग मौजूद थे जिन्होंने के ख़वातीन की तालीम को फोकस करते हुए इस स्कूल का क़याम अमल में लाया गया। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और हम सीक्रेट में डिफरेंट गेम्स भी बना सकते हैं ब्लॉग्स को ऐड करके, और हम बहुत सारे काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, स्केचिंग भी बनाए हैं, हमने एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास भी पढ़ी है। 600 तालिबात इस तालीमी अदारे से इल्म की रोशनी हासिल कर रही हैं। शेर मोहम्मद, PTV न्यूज़, गिलगित। दुनिया भर में आज तख्लीक और इख्तिराह का दिन मनाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे कंजा नकवी। हर इंसान में कुछ नया कर दिखाने की ख्वाहिश होती है। बहुत से अफराद मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी ख्वाहिशात को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं, लेकिन मुमताज़ वही होते हैं जो उस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए तख्लीकी और इख्तिराई फ़िक्र का सहारा लेते हैं। तख्लीक और इख्तिरा का दिन मनाने के लिए 2018 में मुख्तलिफ ममालिक की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पास हुई और यह दिन मनाने का आगाज़ हुआ। ग्लोबल क्रिएटिविटी इंडेक्स में सर फहरिस्त ममालिक का बगौर मुशाहिदा किया जाए तो ये बात सामने आती है कि उन ममालिक ने फ़नून और तख्लीकी सलाहियतों से मुतालिक शोबों के लिए फ़ंड्स बढ़ाए। फ़ंड्स की फरावानी से न सिर्फ मुताल्लिका शोबों की कारकर्दगी बेहतर हुई बल्कि तख्लीकी अज़हान का बेहतरीन इस्तेमाल भी देखा गया। पाकिस्तानी नौजवान ज़रखेज़ तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं। उनकी तख्लीकी सलाहियतों को मज़ीद उजागर करके साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन जैसे शोबों में इनकलाब लाया जा सकता है। कंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद।